بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل مسیحا کی آپ 57 ایک ساتھ سن چکے ہیں، اب قسط 58 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں۔ اور آپ سے ہر بار کی طرح آج بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک لازمن کیا کریں اور شیئر بھی ہر حال میں کیا کریں، آپ کے بہت مشکور رہیں گے۔ اور کمنٹس باکس میں لازمن بتایا کیجئے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کیا ہے یا شیئر کیا ہے یا نہیں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ایس پی سجاد ڈالی کو اپنے رخصت ہونے کا اندیا دینے لگا تو ڈالی نے آخر میں اسے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سجاد صاحب، ابھی اگر کیس میں آپ کو کوئی کمی بیشی یا اونچ نیچ نظر آتی ہے تو ابھی بتا دیں مجھے، بس صورت دیگر میں ہائر اتھارٹیز سے بھی مدد لے سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ سے ضرور بات کر لوں۔ دراصل میں آپ کو ان افسروں کے دباؤ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ارے نہیں محترمہ صاحبہ، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کی رسائی کہاں تک ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، یہ کام اب آپ کا نہیں، میں اپنا سمجھ کے ہی انجام دوں گا۔ ایس پی سجاد جلدی سے بولا۔ اس کے بعد وہ ڈالی کو سلام کر کے چلا گیا تو گل بادشاہ نے بھی ڈالی سے اجازت چاہی۔ جاتے جاتے اتنا تو بتاتے جاؤ، میں تمہیں پھل سائی کہوں یا گل بادشاہ؟ ڈالی نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف تکتے ہوئے کہا تھا، جو آپ کا دل چاہے، لیکن یہ حقیقت ہی ہے کہ میں یہاں کبھی پھل سائی کی حیثیت سے آیا ہی کب ہوں۔ گل بادشاہ نے کہا اور ڈالی شاید اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ مستقل رابطے میں رہنے کا کہتے ہوئے ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سائیں خیر کرے، میرے پتر صابر کی بڑا ہی پیچیدہ معاملہ ہو گیا۔ یہ گاڑی میں سوار ہوتی منیر نے گہرے تشویش زدہ لہجے میں کہا، صبر رکھ منیرے، صابر میرا بھی سکا بھانجا ہے، پترا وانگو ہے میرا وہ بھی، بالکل فیکے پتر کی طرح۔ گل بادشاہ نے اسے حوصلہ دیا اور اپنے بیٹے کے ذکر پر اس بیچارے کا لہجہ بھی رن سکایا۔ میں محترمہ کے پاس کوئی جھک مارنے نہیں گیا تھا اور یہاں آنے کے بجائے سیدھا پولیس اسٹیشن کا بھی رخ کر سکتا تھا، لیکن جانتا تھا میں کہ پولیس اس کیس کا کیا حشر کرے گی۔ مگر محترمہ کی بات اور ہے، سنا نہیں تھا تم نے انہوں نے ایس پی کو چاہتے سمے کیا کہا تھا کہ ان سے یہ کام ہو سکتا ہے تو حامی بھرے ورنہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے؟ ہاں سنا تو تھا ماؤسائی، پر پھر بھی ڈر لگتا ہے، جوان بیٹی کی زندگی تاہوں پر لگی ہوئی ہے، ابھی تو نکے فیکے کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں۔ منیر روحان سے لہجے میں بولا، آہو منیرے، معلوم ہے مجھے، رب سائیں سے خیر کی دعا مانگ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گل بادشاہ بولا۔ میں اور رومی سارے راستے سوچوں میں گھرے خاموش رہے۔ گل بادشاہ کے گھر پہنچے تو وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی، ابھی تک لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ مجھے اس ماحول سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے بھی کہ میرا اپنا دل و دماغ پریشانی اور الجھنوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ لہٰذا ہم گل بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ اب تو تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی کہ یہ محترمہ کس قبیل کی نکلی، میں نے کمرے میں آتے ہی رومی سے کہا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے پھر بھی کوئی تسلی نہیں ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم جس مشن کے لیے آئے تھے وہ ابتدا ہی سے ناکامی سے دوچار ہو چکا۔ رومی نے مایوسانہ لہجے میں کہا، سچی بات یہی تھی کہ خود مجھے بھی بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے رومی، حالات ہی ایسے پے در پے بتلے تھے کہ ہمیں اپنے دھارے پر بہا لے گئے، کچھ کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ پہلی مشکل تو بیٹھے بٹھائے تمہارے اس طارق میاں نے ڈالی کہ خود ہی ایک رات اچانک کراکوٹ والی مہم پر چلا گیا اور پھنس گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا سمجھدار آدمی ہوتے ہوئے ایسا غیر دانشمندانہ اقدام کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اسے ہمیں بھی ساتھ لے جانا چاہیے تھا، اس نے دشمن کو ہلکا لے لیا ہوگا یا اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گیا ہوگا۔ رومی بولی، کچھ بھی صحیح، اب ہمارے سامنے کوئی لاہے عمل نہیں رہا، ہم دوسروں پر انحصار کرنے لگے اور پولیس کے چکروں میں الگ پڑ گئے۔ اب حکم ملا ہے کہ بانو کو کسی طرح سے لا کر ایس پی سجاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوا اپنی پیشانی مسلنے لگا اور ایک کرسی پر تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گیا۔ رومی بیڈ پر پاؤں ٹکا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ ہم تبادلہ خیال میں مصروف تھے کہ گل بادشاہ آ گیا اور بولا، تم دونوں اکیلے جاؤ گے یا میں اپنے ایک دو آدمی تمہارے ساتھ کر دوں؟ ویسے میرا خیال ہے ایک آدمی کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ تو بہتر ہے، دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہاں جانا ہے ہم نے؟ میں الجھ کر بولا، کیا بھول گئے؟ بانو کو لینے نہیں جانا؟ گل بادشاہ چونکتی ہوئی حیرانی سے ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا،
हाँ लेकिन हम दोनों ही जाएंगे, इस बार रूमी ने कहा। ताज़ियत के लिए आए हुए मेहमानों का मुआमला न होता तो मैं खुद तुम लोगों के साथ चलता, लेकिन मेरा मशवरा फिर भी यही होगा कि आप हमारे लिए बस एक गाड़ी का बंदोबस्त कर दें। मैंने दरमियान में उसकी बात काट कर कहा, बानों को लेकर हम सीधा इधर ही आ जाएंगे, हमारे साथ किसी और अनजान आदमी को देखकर वो घबराना चाहे। मेरी बात पर गुल बादशाह कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, मैं देखता हूँ कौन सी गाड़ी खड़ी है। वो ये कहकर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक गया और हमारी तरफ अजीब नजरों से तकते हुए बोला, तुम दोनों कुछ उलझे हुए और परेशान से नजर आते हो। कोई बात है तो छुपाओ मत मुझसे। अगर कोई नया ख्याल तुम्हारे ज़हनों में पल रहा है तो मुझे भी आगाह कर दो। तुम देख ही रहे हो कि अब हम भी तुम्हारे साथ शामिल हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि तुम कोई और अलग राह बनाने का सोच रहे हो और हमारे दिल में कुछ और हो, इस तरह मामला कहीं और न निकल जाए। इसके बाद पर मैं और रूमी एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। वो वाकई घाघ आदमी और जमाना चशीता था। न जाने कैसे उसने हमारे चेहरों से हमारी गैर तसल्ली बख्श कैफियत को उतार लिया था। तब मैंने बात बनाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है भुलसाई, बस जरा हालात ही कुछ गैर यकीनी से महसूस हो रहे हैं, पर हम सब तो दुरुस्त सिम्मत में ही जा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करवाता हूँ। वो ये कहकर चला गया। ये हम पर भी शक कर रहा है। इसके कमरे से निकलते ही रूमी बोली, हम खुद इस पर शक कर रहे हैं तो इसकी क्या बात है। मैंने कहा। रूमी ने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ खींच लिए। थोड़ी देर गुजरी थी कि गुल बादशाह आ गया। आ जाओ, गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है, खैर ना जाओ तो खैर न वापस आओ, पानों को जरूर लाना साथ। मामला अब पूरी तरह पुलिस के हाथ में जा चुका है, उसने एक बार फिर जैसे हमें मुतरब्बे करने वाले अंदाज में कहा। हम बाहर आ गए। आए हुए मेहमानों की भी गाड़ियां खड़ी थीं, इसलिए गुल बादशाह ने हाथ के इशारे से हमें एक जानिब खड़ी नेवी ब्लू कलर की कल्टस की तरफ इशारा करके बताया, वो कार है, इसकी टंकी फुल है, इसकी खुफिया कंपार्टमेंट में एक अदद भरा हुआ पिस्तौल भी है, बेफिक्र होकर जाओ। अब पुलिस हमारे साथ है। एसपी सजाद का नाम लेना ही काफी होगा, या फिर मोहतरमा का, या इनका बड़ा टहका है। मैंने उसकी बात पर अपने सर को असबाती जुम्बिश देने पर इक्तिफा किया था। कुछ लोग मुझे बाहर भी बातें करते नजर आए, जहां इनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। ये शायद जाने वाले थे। मैं और रूमी इन पर उचड़ती सी नजरें डालकर कार की जाने बढ़ गए। मैं और रूमी कार में आ बैठे। अग्निशन में चाबी लगी हुई थी। कार अच्छी कंडीशन में और 3-4 साल ही पुरानी थी। मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा थी। मेरा रुख मेन रोड की जानिब था। अभी हम जैली सड़क पर थे जो कतरे नीम पुख्ता थी। जरा गर्दन मोड़े बगैर पीछे की जानिब अपने मिरर पर देखो, एक बाइक आ रही है, इस पर 2 अफराद बैठे हैं। अचानक रूमी ने कहा। वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी और साइड मिरर से अकब में तके जा रही थी। मुझे उसकी बात ने चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसकी हदायत को फौरन फॉलो किया था। एक 125 बाइक खासी कम रफ्तार से हमारे अक्कब में चली आ रही थी। इन पर शुबा करने की कोई खास वजह? मैंने पूछ लिया। कुछ खास नहीं, बस मेरी छठी हिस्स फड़की थी इनको देखकर। वो जवाब में बोली, बगैर किसी वजह के छठी हिस्स भी आजकल नहीं फड़का करती। मैंने कहा। जब गुल बादशाह हमसे मुखातिब था और गाड़ी की जानिब इशारा कर रहा था तो ये दोनों हमारी जानिब तके जा रहे थे। ये भी कोई खास वजह नहीं, तुम यूं बेपर्दा देखकर हर किसी की निगाह पड़ जाएगी। इनका अंदाज हमारे रवाना होते ही ऐसा था जैसे उजलत में हो। रूमी ने बिलाखिर तजस्सुस का पेंडोरा बक्स खोला। यह कहो ना, मैंने कहा, और पूरी तरह मोहतात हो गया। कार मेन रोड पर आते ही मैंने इसकी रफ्तार बढ़ा दी थी। रूमी को मैंने एहतियातन गुल बादशाह के बताए हुए क्लोक कंपार्टमेंट से पिस्तौल निकालकर गोद में रखने का कह दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ताज़ियत के लिए आए हुए मेहमानों में दुश्मन के आदमी शरीक हो? मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। यकीनन, रूमी ने मुख्तसरन कहा। होशियार, इनकी बाइक की रफ्तार तेज हो रही है। मैंने कार की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ाई, यह देखने के लिए कि ये लोग हमसे आगे निकल जाते हैं या फिर मैं इससे आगे कुछ नहीं सोच सका। एक खुला सा मोड़ आया और इसके साथ ही एक और सड़क बाएं जाने मुड़कर कच्चे में उतरती गई। इसे क्रॉस किया तो अचानक रूमी के हल्क से मुताहिराना आवाज बरामद हुई और मैं चौंक सा गया। अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? बाएं जाने वाली कच्ची सड़क पर है, बेख्तियार मेरे मुंह से बरामद हुआ। तो फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दो, रूमी ने कहा। मैंने ऐसा ही किया। हम अब पुराना हासिलपुर के वस्ती इलाके में दाखिल हो चुके थे और उसके बाद एक और सड़क पर कराकोट जाने वाले रास्ते पर हो लिए। ये धूल और गर्द उड़ाता नीम पुख्ता सा रास्ता था। होटल सराय से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मैंने कार उस सिम्मत पर मोड़ थी जहाँ खाना बदोशों की बस्ती थी और वहां सुक्खा ने बानों को छुपा रखा था। 1 मिनट, गाड़ी रोको, अचानक रूमी ने कहा। खैरियत तो है? क्या हुआ? मैंने चौंक कर पूछा। प्लीज गाड़ी रोको सैफ, वो बाइसरार बोली और मैंने फौरन ब्रेक पर पांव रख दिया। कार एक झटके से रुकी तो गर्द के मरगोलों ने कुछ देर तक हमारी कार को घेर लिया।
मैंने जरा गर्दन मोड़कर रूमी की तरफ देखा तो मुझे उसके चेहरे पर कुछ ऐसे तासुरात उमड़ते महसूस हुए जैसे वो गिरदो पेच की कोई सुनगुन लेने की कोशिश कर रही हो। तुम एक आवाज सुन रहे हो? अचानक ही फिर उसने अजीब इसरार भरे लहजे में कहा। मैंने भी खामोशी से यकटुक और बागौर आवाज सुनने की कोशिश की थी कि चौंक पड़ा। हाँ, एक आवाज सुनाई तो दे रही है, शायद किसी इंजन की है, मैंने गोम गोश से अंदाज में कहा। ये उसी बाइक की आवाज है, वो बोली। कौन सी बाइक? वही 125 जिस पर 2 मशकूक अफराद हमारा ताकुब कर रहे थे और फिर अचानक नजरों से ओझल हो गए थे। ओहो, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। सुनो, अब वो आवाज बंद हो गई। रूमी ने फिर इंकशाफ किया। हाँ, अब नहीं सुनाई दे रही, मैंने गौर करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि वो किसी और मुतबादल रास्ते से बदस्तूर हमारे ताकुब में है और अब हमारी गाड़ी रुकते देखकर वो भी रुक गए हैं। रूमी ने ख्याल जाहिर किया तो मुझे उस पर साथ करना पड़ा और बोला, इनके ताकुब करने की वजह क्या हो सकती है? मैंने सोचने के से अंदाज में कहा और दफातन मेरे जहन में एक छवाका सा हुआ। फौरन बोला, कहीं ये लोग हमारे जरिए से बानों का खोज लगाने तो नहीं जा रहे हैं? एग्जैक्टली। रूमी यकायक एक जोश चले बोली। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए। मेरा ख्याल है हमें इधर ही रुके रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए। रूमी ने मशवरा दिया और मैंने गौर करने वाले अंदाज में होले से अपने सर को असबात में जुम्बिश दी थी। हम धड़कते दिल के साथ कार में बैठे इसी तरह वहीं ठहरे रहे, साथ ही हमारी ठिठकी हुई समातें भी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक बाइक की आवाज दोबारा सुनाई थी। होशियार, वो शायद इसी तरफ आ रहे हैं। रूमी ने सरसराती हुई सरगोशी में कहा। एक हुमकारी खारिज करते हुए मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोल कर नीचे उतरने लगा तो रूमी ने चौंक कर पूछा, क्या करने लगे हो? तुम कार ही में सवार रहो मगर मोहतात रहना, गाड़ी की खराबी का ड्रामा करना जरूरी है। कहते हुए मैं नीचे उतर गया और यूं ही कार का बोनट उठाकर उस पर झुक गया। चंद ही सानिये बीते होंगे कि मेरे बाएं जानिब की झाड़ियों के अकब से एक बाइक नमोदार हुई। मैंने सर उठाकर धड़कते दिल से देखा और यकलख्त मेरे आसाब तन गए। ये दोनों वही बाइक सवार थे जिन पर सबसे पहले रूमी को शक हुआ था और जुगुल बादशाह के यहाँ ताजियत के लिए आए थे। इसके बाद वहां से हमारे ताक़ुब में लग गए थे। मैं सीधा होकर मोहतात अंदाज में इनकी जानिब देखने लगा। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। वो मेरे करीब आ गए। मैंने खैर सगाली के तौर पर हाथ दिया। वो बाइक लेकर मेरे बिल्कुल करीब आ गए। वो दोनों खासे लहीम शहीम थे और शलवार कमीज में मलबूस थे। चेहरे मोरे से भी और ही खुमाश के दिखते थे। दोस्तों, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने दोस्ताना अंदाज में उनसे गुजारिश कर डाली। वो दोनों बाइक से नीचे उतर आए। एक ने थोड़ा झुक के अंदर बैठी रूमी की जानिब देखा था, जबकि उसका दूसरा साथी जो बाइक चला रहा था उसने बाइक को साइड स्टैंड पर लगाया और मुझसे बोला, क्या हुआ है? उसके बोलने का अंदाज भी मुझे झटकेदार महसूस हुआ, जैसे लठ मार रहा हो। पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छी भली चल रही थी कि अचानक इसका इंजन बंद हो गया। मैंने मदद तलब लहजे में कहा, खराबी नहीं मिल रही है, शायद आप कुछ कर सके। मैं गाड़ी के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूं और चलानी भी नई नई सीखी है। याद रहे इस दौरान मैंने अपने ड्रामे में रंग भरने के लिए सेल्फ की एक तार खींच दी थी। मैं कोशिश करता हूं, उसने कहा और एक निगाह उसने भी कदर झुक कर विंड स्क्रीन से अंदर बैठी रूमी की तरफ देखा था। फिर अपने साथी को मैंने उसे मखसूस इशारा करते हुए महसूस किया। वो भी अब मेरे करीब आ गया था। मैं दानिस्ता उसे रास्ता देने के लिए चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। मेरे अंदर बुरी तरह हलचल मची हुई थी कि अब तब मैं कुछ खोने वाला था। वो आदमी आगे बढ़ा और बोनट पर झुक गया। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी रहीं। उसके दूसरे साथी के खड़े होने का अंदाज मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे अभी वो मुझ पर किसी शिकरे की तरह झपट पड़ेगा। वो कुछ ऐसी ही नजरों से मेरी जानिब देख रहा था, लेकिन फिर जरा सी ही देर बाद वो अपनी जेब से सेल फोन निकालकर मुझसे चंद कदम दूर जा खड़ा हुआ और किसी से बातें करने लगा। इसका साथी बदस्तूर बोनट पर झुका हुआ खामखा की छेड़छाड़ में लगा हुआ था। मैं समझ गया कि किसी खास वजह के तहत वो भी हमारे साथ ड्रामा कर रहा था, पर न उसे सेल्फ के निकले हुए तार का कैसे पता नहीं चलता, जो एक मामूली सी खराबी थी। इसी दौरान मैंने तुजदीदा नजरों से उसके दूसरे साथी की जानिब देखा। उसे थोड़ी देर मोबाइल फोन पर बात की थी और अब करीब आकर खड़ा हो गया था। इसके खड़े होने का अंदाज में मुझे खासा चौकन्ना सा महसूस हुआ था। मुझे पसे पर्दा कुछ खिचड़ी सी पकती नजर आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो खराबी देखने वाला आदमी सीधा खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस खारिज की और चेहरे से यूं परेशानी जाहिर करने लगा जैसे बड़ी कोशिश कर रहा हो। क्यों भाई, मुश्किल है? खराबी है? मैंने पूछा। कुछ ज्यादा नहीं, वो बोला। खराबी तो ढूंढ ली है मैंने, थोड़ी और कोशिश करता हूं, वरना करीब में कोई मैकेनिक या गैराज नजर आ जाएगा तो धक्का देकर वहां तक ले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अपना टाइम पर बात करके हमारी मदद कर रहे हो, मैंने ममनून लहजे में कहा। उसने कोई तासुर नहीं दिया। दफा नहीं मैं चौंक पड़ा। किसी गाड़ी की आवाज उभरी थी। वो दोनों भी मोहतात हो गए।
खराबी दूर करने वाला एक दम तन कर खड़ा हो गया था। गाड़ी करीब आकर रुक गई। इन दोनों ने अपनी कमीजों के नीचे हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिए। यही एक नजर मेरी उन पर पड़ी थी और दूसरी गाड़ी पर। वो मुझे देखी भारी लगी। इसमें से 3-4 मुसल्ला अफराद उछल के उतरे और एक को पहचान कर जैसे मेरी सांसें तक रुकती महसूस हुई। वो ताज था। उसकी नाक पर पट्टी बनी हुई थी। शायद मेरे खोंसे ने उसकी नाक का बांसा तोड़ डाला था। वो खासे बिफरे हुए अंदाज में मेरी जानिब यूं लंबे लंबे डग भरता हुआ चला रहा था जैसे मेरे करीब आते मुझ पर पिल पड़ेगा। और इसमें शक भी नहीं था, क्योंकि गुल बादशाह और मैंने झाड़ियों वाले तालाब में उसकी जो दुर्गत पराई थी वो भला ये मरदूद कहाँ भूला होगा। गाड़ी वही थी जिसे हम मुनीर कांजा के होटल के बाहर देख चुके थे और मैं जान चुका था कि यह ताज ही की थी। महरकैफ में समझ गया था कि वो 2 बाइक सवार भी इसी के साथ ही थे, बल्कि इनमें से एक अपने सेल फोन से किसी से बात करने के लिए जरा दूर हट गया था, तो उसी ने इन्हें आगाह कर दिया होगा कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। मुझे ये भी यकीन था कि गुल बादशाह के घर से लेकर यहाँ तक हमारा ताक़ुब करते हुए उसी आदमी ने मुसलसल उनसे फोन पर राब्ता रखा होगा, क्योंकि ताज समेत मेरे दुश्मन निचले बैठने वाले नहीं थे। इसलिए वो मेरी तलाश में निकले हुए थे और यहाँ तक उनकी बासानी रहनुमाई कर दी गई थी। वही हुआ। ताज ने मेरे करीब आते ही गज़बनाक अंदाज में अपने दाएं हाथ का मुक्का लहरा दिया, जो मेरे चेहरे पर पड़ता अगर मैंने यकदम ही चुकाई न दे डाली होती। आलम तैश में इंसान का जिस्म झटके लेके मुर्ताइश होता है। नतीजतन उसका वार खाली ही नहीं गया, बल्कि वो अपनी ही झोंक में निस्फ हद तक घूम भी गया था। यही वो वक्त था जब मैंने उससे अपने कंधे की ज़रब रसीद कर डाली और वो दूर जा गिरा। अचानक फिजा में ब्रस्ट चलने की आवाज उभरी। मेरे कदमों के करीब भुरभुरी मिट्टी वाली जमीन पर बस्त गोलियों के बौछार पड़ी और गर्द का बगोला उठा। मैं बुरी तरह बिदक कर उछला और चंद कदम पीछे हटा तो मेरा एक पांव बुरी तरह रिपट गया। जैसे ही मेरा पांव रिपटा, मैंने खुद को नीचे गिरते और अगले हिले में लुढ़कते भी पाया। तभी लुढ़कने के दौरान मेरे जहन में एक छमाका सा हुआ कि मैं और रूमी यहां अपनी कार में रुके थे। इसके एक जानिब कदरे करीब में ढलान थी। वहां खासी तादाद में खुदरू झाड़ियां उगी हुई थी। मैं नीचे क्या गिरा था कि मुझे फरार का रास्ता नजर आ गया था। यूं मेरे संभलने में चंदा देर नहीं लगाई और बेतहाशा एक जानिब की करके मुख्तसर से जंगल की जानिब दौड़ता चला गया। मैंने बस लम्हे भर को तसव्वुर ही तसव्वुर में ऊपर कदरे बुलंदी पर मौजूद ताज समेत उसके साथियों को पहले तो हक्का बक्का अंदाज में एक दूसरे का मुंह तकते हुए देखा। वो एक दूसरे से पूछ रहे हूं कि यह क्या हो गया था, और जो हो गया था उसकी समझ इन्हें जितनी देर में आई थी तब तक मैं थोड़ा दूर जा चुका था। मेरे रकम में एक तवातर से गोलियां चलना शुरू हो गई थी। इस हादसी बरसात से बचने के लिए मेरे जहन में जो फिल्मी तरीका आया था, मैं इस पर अमल पैरा हो गया। मैं रुका नहीं और जिग जैग तोड़ता चला गया, यहां तक कि ऊंचे नीचे टीलों टिब्बों के अकब में खुद को गुम कर लिया। इसलिए मुझे अब खुद भी नहीं मालूम हो पा रहा था कि मैं किधर का रुख करूं। मुबादा किसी अनजाने मोड़ पर दोबारा दुश्मनों के सामने न जा पहुंचूं, बस एक मोहतात अंदाजा था और मैं रुका नहीं, भागता रहा। आखिर एक मकाम पर बेदम सा होकर गिर पड़ा। ऊंधे मुंह गिरने से मेरा चेहरा मिट्टी से अट गया था। आंखें तो बच गई मगर मुंह मिट्टी से भरने लगा। हाँपने की सूरत में गर्द के जर्रे हल्के में उतर गए। खांसी का दौरा पड़ा जिसने मुझे मजीद हल्कान कर डाला। दुश्मन मौत की सूरत सर पर खड़े थे और मैं ज्यादा देर सस्ताने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था।